Hello everyone, this is Muskan Walwani, an educationist, author, blogger, and founder of EduCreate, where talent meets excellence. First of all, wishing you all a very happy Diwali. So today's topic is pronoun. That is our second part of speech, right? So pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronoun एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को सेंटेंस में से रिप्लेस कर देता है. रिप्लेस करना दैट मीन्स उसकी जगह पर आना, राइट? हिंदी में हम इसे सर्वनाम कहते हैं. Fine. So, pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. For an example, Ram is going to the market. So, what is noun? Noun क्या है इसमें? Ram. It's the name of a person. So, राम की जगह हम लोग एक वर्ड रिप्लेस कर रहे हैं, वहाँ पर हम लिखते हैं प्रोनाउन. ठीक है. सो प्रोनाउन क्या हुआ वहाँ पर? ही. बिकॉज बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही. सो ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, ये हमारे जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे जनरल प्रोनाउंस हैं. Right? Now there are 10 types of pronoun. First is personal pronoun, second is demonstrative pronoun, third is interrogative pronoun, fourth is possessive pronoun, fifth is reflexive pronoun, sixth indefinite pronoun, seventh relative pronoun, eighth reciprocal pronoun, ninth distributive pronoun, and 10th intensive pronoun. इनको स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, राइट? Now see, subject versus object pronouns in English. Subject and object. सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि subject क्या है and object क्या है. So subject is a noun or a pronoun. Subject क्या होता है sentence में? या तो वो noun है या तो वो pronoun है. That is what the subject. And object means जो sentence हमारा end हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि हमारा जो सेंटेंस में रिमेनिंग या रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. नहीं. ऑब्जेक्ट इज़ लाइक कि जहाँ पर हम जिस जो प्रोनाउन है या जो नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या बात हो रही है. लाइक प्रोनाउन दैट इज़ यूज टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? सो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की, कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ और क्या होते हैं और वो कहाँ लगते हैं, एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ यूज़ होते हैं. सो लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, दीज आर सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं. A pronoun that refers to a subject of your sentence, and it's like typically used as a subject of a sentence. Sentence का subject मतलब mainly हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा subject होता है. and यहाँ हम बात करते हैं object pronoun की. I का me, you का you सेम रहता है, ये object pronouns है. he का him, she का her, it का it, we का us, you का you, and they का them, राइट? और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो गया कि जिस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्या बात है, एग्जैक्टली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? सो वहाँ हम ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हियर. आई एम ईटिंग अ सैंडविच, राइट? आई एम ईटिंग अ सैंडविच, मैं एक सैंडविच खा रही हूँ. तो आई इज़ वॉट अ सब्जेक्ट, मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ. आई गेव हर अ बुक, I is the subject, but her is what? It's object. I gave her, मैंने उससे बुक दी, उसे क्या हुआ? That is object. He gave her a book. He gave her a book. He is what? Subject pronoun. Her is what? Object pronoun. She gifted me a card. She is subject, but me is object. She is running to the store. Running to the store. She is subject, and he is running to the store. He is also a subject. In object pronoun he subject है. जो example given है, he is running to the store, it's subject, right? I hope ये clear हो गया होगा. Now we are moving on types of pronoun.
As just now I have cleared you that what is subject pronoun and object pronoun. So in personal pronoun, a personal pronoun is a type of pronoun in the parts of speech that shows the personal attachment of any substance or action with the subject. सी लाइक मैंने भी आप लोगों को क्लियर किया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, बट इन पर्सनल प्रोनाउन वी टॉक अबाउट थ्री पर्सनस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. उसमें भी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म रहता है. लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो इन सब्जेक्ट वी यूज़ आई एंड इन ऑब्जेक्ट वी यूज़ मी. सेकेंड पर्सन यू, in object also you. Third person he, she, it, and in object him, her, it. अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स मैं. अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मैं बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? सेकेंड पर्सन दैट मीन्स यू, राइट? किसके बारे में बात कर रही हूँ? तो थर्ड पर्सन दैट मीन्स ही, शी और इट. सिमिलरली इन प्लूरल ऑल्सो वी, अस, यू का यू ही रहेगा प्लूरल भी, एंड दे का दैम, राइट? लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक एट द हिल स्टेशन. वी इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. हम लोग जाना चाहते हैं. एंड इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस फ्रॉम द किचन. इट वी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और फॉर एन एनिमल. Now coming on second pronoun, that is demonstrative pronoun. I have made a separate video on demonstrative pronoun as it works on 4 T's. ये 4 T's पर work करता है. That is this, that, these, those. Right? This or that we use for singular forms and these and those we use for plural forms. Now the second rule is this and these we use for the nearer things. जो चीज़ें पास में है उसके लिए हम this और these का यूज़ करते हैं, and जो चीज़ें दूर हैं for that we use that and those. For an example, this is an apple. एक एप्पल है, एक की बात हो रही है पर वो एप्पल पास में है, so we are using this. And एक एप्पल है जो कि दूर है डिस्टेंस में, तो we are using that. सिमिलरली प्लूरल फॉर्म में जो बहुत सारे एप्पल्स हैं जो पास में है, नियरर इन डिस्टेंस, उसके लिए हम दीज यूज़ कर रहे हैं, और जो एप्पल्स दूर है वी आर यूजिंग दोज. थर्ड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज इंट्रोगेटिव? सी, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि दैट मीन्स वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस मीन्स व्हाट? We are using WH words. What is WH words? In the beginning of every word, we are using WH, like see, who, whom, whose, what, which, why, when, where. So, from this words only, we are asking questions, right? Who is coming to the party? Party में कौन आ रहा है? Whom did you invite to the party? आपने पार्टी में किसे invite किया है? Whose car is parked outside? बाहर किसकी कार पार्क्ड है? How did you learn to play guitar? आपने गिटार प्ले करना कैसे सीखा था? What is your favorite color? आपका फेवरेट कलर कौन सा है या क्या है? Which book did you read? आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? Why did you quit your job? तुमने अपनी जॉब क्यों क्विट करी? When is your birthday? तुम्हारा बर्थडे कब है? Where is the nearest gas station? Nearest gas station कहाँ है? So the words which we are using to ask questions, that are interrogative pronouns. The next is possessive pronoun. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. See, possession और ownership का मतलब क्या है कि हमारा किसी चीज़ पर right होना, हमारा किसी चीज़ पर हक होना, right? For an example, this pen is my pen. ठीक है, मैंने ये बोला कि ये पेन मेरा है, not your pen. तो उसकी जगह हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं जहाँ पर उन वर्ड्स के थ्रू हम अपनी पोजेशन शो कर सकते हैं. लाइक दिस पेन इज़ माइन, नॉट योर्स. ये पेन मेरी है, तुम्हारी नहीं है. सो देयर आर सम वर्ड्स लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, देयर्स. दिस इज़ माई लैपटॉप. इट्स माइन. ये मेरा लैपटॉप है. इट्स माइन, ये मेरा है. दैट मीन्स आई एम शोइंग माई पोजेशन कि ये मेरी चीज़ है. दीज ग्लासेस आर माइन, नॉट योर्स. ये ग्लासेस मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं. दिस इज़ माई ब्रदर्स बुक. इट्स हिज. ये मेरे भाई की बुक है. इट्स हिज. ये उसकी है. ही ऑफर्ड टू स्वैप हिज कैमरा फॉर हर्स. आई विल शो यू टू योर रूम. आर्स इज़ नेक्स्ट डोर. दिस
सॉरी, द हाउस इज़ योर्स, ये हाउस तुम्हारा है. द शिप इज़ देयर्स, ये शिप उनकी है. सो यहाँ पर हमने क्या किया, पोजेशन शो करी, अपनी ओनरशिप शो करी चीज़ों को लेकर. Now, reflexive pronoun. We often use reflexive pronouns when the subject and the object of a verb are the same. It includes myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ यूज़ होते हैं जब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो वर्ब के लिए यूज़ होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए जब यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आई डोंट लाइक माई सेल्फ विदाउट अ बेयर्ड. ये एक बॉय अगर ये सेंटेंस बोलता है, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, लाइक मतलब क्या हो गया हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, एक्शन, दैट मीन्स पसंद करना, लाइक करना दैट मीन्स पसंद करना. सो आई डोंट लाइक माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, राइट. आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता क्या, माई सेल्फ, खुद को, खुद को, विदाउट अ बेयर्ड, बिना बेयर्ड के. तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही किसके लिए वर्क कर रहे हैं, वर्ब के लिए. मैं खुद को, मैं खुद को, राइट, मैं खुद को बिना बियर्ड के पसंद नहीं करता. सिमिलरली एज इन योर सेल्फ, himself, herself, oneself. One more thing I want to tell you, सिंगुलर और प्लूरल भी होता है इसमें. सेल्फ हम वहाँ यूज़ करते हैं जब सिंगुलर मतलब एक की बात हो रही हो, एंड सेल्फ्स वी यूज़ जब प्लूरल की बात हो रही हो. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आर सेल्व्स, वी वॉकड होम बाय आर सेल्व्स, हम खुद से घर चलकर आए. हम खुद से, हम इट्स सब्जेक्ट एंड आर सेल्व्स इट्स ऑब्जेक्ट. All right. Now the next is indefinite pronoun. An indefinite pronoun is a pronoun that connects random and non-specific beings, places or any object. It is used to count the entire noun without any specification. Also it contains all, both, each, etc. इनडेफिनेट प्रोनाउन का क्या काम है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है रैंडम एंड नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स, प्लेसेस या किसी ऑब्जेक्ट को. नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स मतलब क्या, दैट मीन्स जनरल. यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर स्पेसिफाई या स्पेसिफिकेशन नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बात नहीं होती है, इन जनरल बात होती है. तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं लाइक ऑल, एनीबडी, एवरी, एनीथिंग, सेवरल, ईच, मोस्ट, नथिंग, नो वन, एवरीवन, बोथ, ऑल. सो ये हमारे क्या हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन. लाइक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल आर इक्वल. ऑल मतलब सब, सब यानी दैट मीन्स हम लोग जनरल में बात कर रहे हैं. एनीबडी कैन डांस ऑन द फ्लोर ऑफ डांसिंग. एनीबडी मतलब कोई भी, स्पेसिफिकली तो हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल, राइट. एवरी, आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट एवरी प्लेयर ऑन दिस टीम. Anything, I was unable to hear anything last night after the blast. Several people came to the stadium to see a match. Each of them purchased chocolate from my shop. Each of them, यहाँ पर भी हम जनरल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम किसी को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं. Most of the students are participating in cultural events. Nothing is left in front of me to tell you the truth. No one will help you in this situation. Everyone knows about that incident. Get both of you out of my classroom. Relative pronouns. Relative pronouns take the place of nouns or pronouns. They are called relative pronoun because they always relate back to something or someone else. They are used to join two sentences about the same person or thing. अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है, ये क्या करते हैं, इट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की प्लेस लेते हैं. लाइक दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स, समथिंग एल्स और समवन एल्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को या किसी के लिए भी ये क्या करते हैं, रिलेट बैक करते हैं. रिलेट बैक करने से मतलब क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसी को ही हम रिलेट करते हैं. दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, और ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं अबाउट द सेम पर्सन और थिंग. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, हु का मतलब कौन. ठीक है, नाउ दिस वर्ड हु रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, शी, ही, वी एंड दे. सो फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो. अब यहाँ पर हु ने रिप्लेस किया है किसको, ही को.
क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते तो उसके लिए ही यूज़ करते। तो दिस इज़ द मैन, यही वो आदमी है जिसने विंडो को तोड़ा था, ठीक है, हु ब्रोक द विंडो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मैन को रिलेट कर रहे हैं। ये वही मैन है, ये वही आदमी है, उसी मैन को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट बैक कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर जस्ट शोइंग हियर, द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिविटी शो कर रहे हैं हम लोग। हुज शो पोजेशन और रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हुज वर्ड क्या यूज़ करेगा, यहाँ पर क्या काम आएगा इसका, जो वो पोजेशन या रिलेशनशिप शो करेगा। शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, वो उस फैमिली को जानती थी जिसका घर हम लोग खरीद रहे थे। पोजेशन, राइट। whom, it replaced the object pronoun me, her, him, us and them. They have found the lady whom they want to interview. Which, clauses that begin with which are almost always non-restrictive. My precious blue lamp which was in the room was broken. That, clauses that begin with that are almost always restrictive clauses. The lamp that was in the room was broken. Now the next, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun point toward nouns that act in a closed group and perform a mutual action for every other noun of the group, the impact of which is experienced by all nouns mutually. सी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली उल्टा। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो उसका उल्टा कर देना, राइट। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, तब यहाँ पर जो नाउन है वो एक्ट करता है क्लोज्ड ग्रुप में, एक ग्रुप में होता है ये। लाइक यहाँ पर हम लोग दो वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईच अदर एंड वन अनदर। अब ईच अदर का यूज़ हम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टू नाउन्स, जब हम दो नाउन की बात करते हैं। और वन अनदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, क्रिस एंड जॉली लव टू प्ले विद ईच अदर। क्रिस एंड जॉली बोथ आर द नाउन्स, दोनों नाउन हैं। दे बोथ लव टू प्ले विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं। सो दैट इज़ रेसिप्रोकल pronoun. Since here the mutual verb is between two nouns, as each other is used. Now the next is, they have been working with one another for several years now. They have been, they that means बहुत सारे, मतलब दो से ज़्यादा। तो ये एक बड़े ग्रुप की बात हो गई। तो यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा one another. They have been working with one another, that means वो सब एक दूसरे के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, राइट। Now the next is distributor pronoun. Distributor pronoun are words used in order to groups related people or objects together into larger wholes. ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे लोग या ऑब्जेक्ट्स साथ हो into larger wholes, मतलब बड़े बड़े large ग्रुप्स में हो। Like each one of them is happy. ईच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने बड़े ग्रुप में हर कोई खुश है। ईच वन ऑफ देम, मतलब एक एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो गई वहाँ पर। ईच ऑफ अस couldn't play well. Each year thousands of people gather in this place. Each person has their own opinion. हर किसी का, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने सबको इंक्लूड कर लिया, right? Either of those student is at top. Either he likes to study or he doesn't like to study. See, either जो है वो यूज़ होता है और के साथ। यहाँ पर जैसे सेंटेंस है या either that is, या वो पढ़ना पसंद करता है या वो पढ़ना पसंद नहीं करता है। neither, ये भी वर्ड ऐसा है जो सिर्फ नॉर के साथ यूज़ होता है। neither of two women is a good teacher. दोनों ही टीचर अच्छी नहीं हैं। Neither of them goes to the gym. Neither of my brother went to the party last night. इसमें यहाँ पर नॉर का यूज़ नहीं हुआ है, बट अगर हम बात करें नीदर की तो ये नीदर नॉर के साथ यूज़ होता है। एंड इट्स ये हम लोग को शो करता है नेगेटिव चीज़ों के लिए। नीदर, नन,
शी हैज़ नन ऑफ द क्वालिटीज़ नीडेड टू बी अ गुड एम्प्लॉय, उसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो उसे अच्छा एम्प्लॉय बनाए. दीज टू आर नन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स में से नहीं है. मतलब बहुत सारे लोगों में से अगर आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो कि दोज टू आर नॉन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब यही इन्हीं में से यही दो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं. एनी गर्ल कैन वियर स्कर्ट, मतलब कोई भी गर्ल स्कर्ट पहन सकती है. दैट मीन्स बहुत सारे लोगों में से हम लोगों ने किसी को इंडिकेट नहीं किया है यहाँ पर. एनी मतलब कोई भी, एवरी वन मतलब सब. सो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात होती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप. Now the last is intensive pronoun. So reflexive और intensive pronoun दोनों लगभग सेम ही है, but there are some rules जहाँ पर हम हल्के से minute change करते हैं. Reflexive pronoun में does give the sentence meaning, यहाँ पर sentence का meaning निकलता है in reflexive pronoun. But अगर हम बात करें intensive की, तो doesn't give the sentence meaning. इसमें अगर हम लोग वो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में ऐड कर भी देते हैं तो उससे सेंटेंस का कोई मीनिंग चेंज नहीं होता है, भले वो हो या ना हो. इट्स नेसेसरी फॉर द सेंटेंस टू हैव द सेम मीनिंग, इसमें नेसेसरी होता है सेंटेंस का सेम मीनिंग होना. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द सेंटेंस टू हैव द सेम मीनिंग. एंड इट्स यूज टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सब्जेक्ट, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ इसीलिए किया जाता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करे सब्जेक्ट पर इंटेंसिव में ये चीज़ नहीं होती है. यहाँ पर जो सेल्फ वर्ड्स हैं हम रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ करते हैं और इंटेंसिव में भी. सो प्लीज़ चेक द एग्जाम्पल्स. लाइक फर्स्ट इज़ आई बॉट माई सेल्फ अ शर्ट, मैंने खुद के लिए शर्ट खरीदी थी. ठीक है, आई बॉट अ शर्ट, मैंने शर्ट खरीदी थी. तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है इट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर रहा है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिव प्रोनाउन, द टीचर हर सेल्फ टॉट क्लास, टीचर ने खुद से क्लास पढ़ाई थी. एंड द टीचर टॉट क्लास, टीचर ने क्लास पढ़ाई थी. सो यहाँ पर अगर हर सेल्फ सेंटेंस में नहीं भी है तो भी हम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. लाइक हर सेल्फ डजेंट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कुछ सेंटेंस के मीनिंग को वो इफेक्ट नहीं कर रहा है. सो दिस इज़ द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन. So I have explained you 10 types of pronoun. In my next video, I will come up with the new topic, that is our third part of speech, verbs.